متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم منطق کی پہلی بحث جہاں سے علم منطق کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے دلالت کی بحث. اس مقام پر دو نکات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ دلالت کی بحث آیا یہ معنوی بحث ہے یا لفظی بحث ہے. یہ نقطہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ جی اس لیے اس نقطے کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ علم منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت. معرف اور حجت معانی ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے. جب آپ کہتے ہیں کہ حیوان ناطق معرف ہے، انسان کے معنی کی تعریف اور تعارف دے رہا ہے، تو حیوان ناطق کے جو معانی ہیں نا وہ معنی معرف ہے، نہ کہ حیوان اور ناطق جو لفظ ہیں یہ معرف ہے. جب آپ صغرا اور کبرا تشکیل دے کے نتیجے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے مقدمات کے اندر جو الفاظ ہیں موضوع اور محمول کے وہ حجت نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ایک معانی ہیں ان مقدمات سے آپ سمجھ رہے ہو، علیکم السلام، وہ معانی حجت ہوتے ہیں. تو معرف اور حجت منطق کا موضوع ہے اور یہ ہے من قبیل المعانی نہ کہ من قبیل الفاظ. جب منطق کا موضوع معانی کی قبیل میں سے ہے تو اب جو اس کے محمولات جن کے ساتھ ہم بحث کریں گے وہ بھی معانی کی قبیل سے ہیں. تو منطق کے اندر ٹوٹل بحث معنی کے بارے میں کی جاتی ہے، لفظ کے بارے میں بحث منطق کے اندر نہیں کی جاتی. لفظ کے بارے میں بحث آپ لغت میں کریں گے، بلاغت میں جا کے کریں گے، نحو اور صرف میں کریں گے. وہ دیگر علوم ہیں جو الفاظ سے بحث کرتے ہیں. منطق الفاظ سے بحث نہیں کرتے، منطق میں بحث معنی سے ہوتی ہے. تو اب دلالت کی بحث کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ آیا یہ بحث لفظی بحث ہے یا معنوی بحث ہے. اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر جواب کی طرف جائیں گے. سوال یہ ہے کہ دلالت کی بحث لفظی بحث ہے یا معنوی بحث ہے، یہ سوال ہے. اور یہ سوال ہم نے اٹھایا کس گراؤنڈ سے ہے؟ وہ اس گراؤنڈ سے ہم نے اٹھایا ہے کہ بھئی منطق کے اندر تو ساری بحث معنی کے بارے میں ہوتی ہے، الفاظ کے بارے میں بحث ہوتی نہیں ہے. تو اب دلالت میں جو ہے وہ ایک دال ہے، ایک مدلول ہے. جو دال ہے وہ لفظ ہے، جو مدلول ہے وہ معنی ہے. تو اب دلالت کی بحث کر رہے ہو تو لگتا یہ ہے کہ آپ الفاظ کے بارے میں بحث کر رہے ہو. تو سوال اور سوال کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ذہن میں آ گیا ہے. تو جواب کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھیں تھوڑی تبادمائی کر لیں، کوشش کریں سمجھنے کی. ہر بندہ اپنی ججمنٹ دے تاکہ آپ لوگوں کی آراء کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھ سکیں. ہاں جی، کوئی ہے جو جواب دے اس کا؟ یہ لفظی بحث ہے، معنوی بحث ہے؟ لفظی بحث ہے. اگر لفظی بحث ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دلالت کی بحث جو ہے یہ منطقی بحث نہیں ہے، کیونکہ منطق میں معنی سے بحث ہوتی ہے، لفظ سے بحث نہیں ہوتی. جیسے
जैसे ही आपने जो है वो निशान लगा दिया तो ये लफ्ज़ी बहस है, मंतक से निकल जाएगा। मंतक में आएगी तो किसी और वजह से आ जाएगी, मंतक की बहस नहीं होगी। हाँ जरिए लबास, तुम क्या कहते हो? लफ्ज़ी बहस। अलामा आप तो हमारे अब साथी बन चुके हैं। लफ्ज़ वसीला है और दलालत की बहस जो है ये मायने की बहस है। एक ऐसे आप क्या कहेंगे? मानवी बहस। क्योंकि लुग़त अरब में एक लफ्ज़ के कई माने भी होते हैं, लफ्ज़ मुश्तरक भी होता है। अच्छा, तो उस लफ्ज़ को एक सहारा ही लेते हैं, वसीला बनाते हैं, उससे जो हमारा मुराद मानी होता है उसी मानी को लेके आगे चलते हैं। तो हम अभी माने को जो हमें मकसद ठीक हो गया, लेकिन हम अभी जो बहस करने लगे हैं वो माने को आगे लेके नहीं बढ़ रहे। हम माने से पहले एक और स्टेप है, एक और स्टॉप है, लफ्ज़ को लेते हैं, वो दलालत है। से माना लेते हैं, फिर मकसूद हमारा माना ही होता है। लिहाजा ये माने के लिहाज से करीब करीब हैं आप, करीब करीब हैं। इरफान आप क्या समझते हो? ये देखो मैं तमरीन इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मंतिक फ़िक्र है, आपकी फ़िक्र की तमरीन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन जो होता है वो एक तमरीन और तहरीक पैदा करता है, अगर नहीं करेंगे माहौल नहीं बनेगा। ये दो घबराया ना करो मेरे सवालात से, और मैंने कई बार पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि एक तो रिलैक्स रहना है, माहौल के अंदर तबस्सुम बरकरार रखनी है, जुर्रत आजमानी है। इस चीज़ से नहीं डरना कि मेरा जवाब गलत हो जाएगा, इस चीज़ से नहीं डरना कि मुझसे गलती हो गई तो मुझे दोस्तों के सामने क्लास में जो है वो खजालत का सामना करना होगा। नहीं नहीं, इन चीज़ों को वैसे हमारी क्लास के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, लेकिन आप अपने तौर पे जहन में अगर कोई इस किस्म का अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हैं तो आपकी ये गलत फहमी है। ठीक है, जब तक आप चोट नहीं खाएंगे साइकिल चलाना आप नहीं सीख सकेंगे। डरते रह गए तो आप फिर जो है वो मंतकी नहीं बन सकेंगे। लिहाजा मैं आपको मौका देता हूँ कि आप अपनी फ़िक्र को ज़रूर शेयर किया करो। और मकसद ये है कि आपकी फ़िक्र के अंदर थोड़ी तहरीक पैदा की जाए, तो आपका जो है वो IQ लेवल, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो प्रमोट होती रहे। साथ साथ सिर्फ नॉलेज लेके आप चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो नॉलेज आपको जो है घर जाने के बाद भूल जाए। सलाहियत भूलने वाली चीज़ नहीं है। इज्तिहाद मतालिब को याद करने का नाम नहीं, सलाहियत का नाम है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये सवालात ही हमें मजबूर करते हैं पहले 10 को कोई तैयार करने पर। जिंदाबाद। ये सवाल होते हैं, लिहाजा 10 जो तो सवाल वहाँ से हो गया ना सारे दोस्तों। साजिद आप क्या कहते हो? मानी वैसे मशकूर लफ्ज़ी बात। अफसर आसिम भाई मानी वैसे, मलिक साहब मानवी है, मानवी लफ्ज़ी वैसे, मानवी वैसे। कौम के दरमियान इख्तिलाफ हो गया है? कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कुछ ने कहा कि लफ्ज़ी बहस है, कुछ ने कहा कि मानवी बहस है। ठीक है, चलो ग्राउंड बन गया, अब एक मिजाज माहौल बन गया है, बहस को आगे बढ़ाते हैं। लफ्ज़ और मैना। लफ्ज़ दाल है, माना उसका मजलूल है, दरमियान में एक उन दोनों के एक रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम दलालत है। ठीक है, रिश्ता दो इंसानों के दरमियान भी तो हो सकता है, दो लफ्ज़ों के दरमियान नहीं हो सकता, लफ्ज़ और माने के दरमियान नहीं हो सकता, हो सकता। तो ये इंसान दूसरे इंसान के साथ रिश्ता रखता है, क्या अखुवत है। ठीक है, सिदाकत है, वह कज़ा बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं। तो लफ्ज़ और माने के दरमियान एक रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम दलालत है। हम बहस ना लफ्ज़ से कर रहे हैं ना माने से कर रहे हैं, हम उन दोनों के दरमियान वाले रिश्ते से बहस कर रहे हैं। अगर इस बहस को तुम और जितना उस दलालत वाले रिश्ते के साथ जितने फासले पे जितना करीबी ताल्लुक लफ्ज़ का है, उतना ही करीबी ताल्लुक
माने का है। इस बहस को अगर तुम लफ्जी बहस का नाम देते हो, चूंकि ये दलालत लफ्ज से सादिर हो रही है, तो भाई माना भी उतना ही शरीक है। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो ना ये लफ्जी बहस है, ना ये मनवी बहस है, ये माने की बहस की एक तमहीदी बहस है। लेकिन तअस्सुर ये दिया गया है, जैसा कि शारे की इबारत से आपको पता चल जाएगा कि ये बहस लफ्जी बहस है। भाई लफ्ज़ के बारे में बहस होती है उसके तलफ़ुज़ में, लफ्ज़ के बारे में बहस होती है उसके एराब में। ठीक है, ये तलफ़ुज़ एराब डायरेक्टली लफ्ज़ से वाबस्ता चीज़ें हैं। दलालत ये लफ्ज़ अपनी एक जगह पे रह गया है, अब हम लफ्ज़ से माने की तरफ जा रहे हैं, दरमियान में एक रिश्ता है, वो रिश्ता हमारा मौजूद है बहस है। और रिश्ते की जो दो तरफें हैं वो दोनों तरफें बराबर फासले पे खड़ी हैं इस दलालत के साथ, उनका एक ही फासला है। ये नहीं कि लफ्ज़ ज़्यादा करीब है तो वो थोड़ा بعید हो जाएगा, लिहाजा हम इसको लफ्ज़ के साथ मनसूब कर दें, ना, दोनों बराबर पे खड़े हैं। वाज़ेह हो रही है ना बात। तो हमारी गुफ्तगू का मौजू ना लफ्ज़ है ना माना है, बल्कि लफ्ज़ और माने के दरमियान एक और चीज़ है, उसका नाम है दलालत, और वो दलालत हमारा मौजू बहस है। अगरचे शारहीन ने तअस्सुर दिया है दलालत की बहस के बारे में कि ये लफ्ज़ की बहस है, और ये तअस्सुर दकीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। एक नुक्ता क्लियर हो गया है। दूसरा नुक्ता यह है इस मकाम पे कि दलालत कहते किसे हैं, दलालत की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, किताब खोल के देखो, नुस्खे के अंदर दलालत की तारीफ लिखी है शाह ने। कौनु शय बेहैस यहसुलु मिन इल्म ही या यल्ज़मु मिन इल्म ही अल इल्मु बिशैइन आखर। अच्छा, कोई चीज़ इस पोजीशन में हो कि उसके इल्म से दूसरी चीज़ का इल्म इंसान को ऑटोमेटिक खुद ब खुद हासिल हो जाए। इल्म आपने हासिल किया इस चीज़ का, मगर इसकी सिचुएशन कुछ इस किस्म की थी कि इसके इल्म से आपको दूसरी चीज़ का इल्म भी हासिल हो गया। ठीक है, इनामी स्कीम थी, आपको कहा गया कि भाई साहब जो बंदा 5 डब्बी सिगरेट की लेगा उसको 6ठी डब्बी फ्री में मिलेगी। होता है या नहीं होता? सिगरेट इसी तरह जो है वो बिकना शुरू हुआ। पहले मुफ्त में बांटने जाते थे, जब लोगों को आदत हो गई तो फिर जो है मज़ीद उनको जो है वो इसकी इशाअत के लिए जो 5 सिगरेट खरीदेगा 6ठा जिसका मुफ्त में मिलेगा। जब लोग आदी हो गए तो फिर उन्होंने पैसे लगते हैं भाई, पिछले पैसे भी उन्होंने पूरे किए अंग्रेज ने अगला पिछला हिसाब चुकता किया। तो दलालत जो है उसमें एक चीज़ जो है आपने इल्म उसी का हासिल किया है, आपके जहन में फर्स्ट टाइम आई वही है, मगर उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, उसकी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि प्रॉफिट में फ्री में आपको उसकी सिचुएशन की वजह से एक दूसरी चीज़ का इल्म खुद ब खुद हासिल हो गया है। तो एक चीज़ का इल्म आपने हासिल किया है, दूसरी चीज़ का इल्म हासिल नहीं किया, इसके साथ फ्री में आपको मिल गया है। अगर एक के साथ दूसरी फ्री में मिल रही हो, समझो उन दोनों के दरमियान रिश्ता दलालत का है। मौलवी हैं फ्री पर जो है को थोड़ा समझा था कि फ्री वाली मिसाल अच्छी लगेगा। चलो और थोड़ा और मजीद आसान करते हैं। इबारत के अंदर मुसन्निफ ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सॉरी शारे ने, लफ्ज़ इल्म। ठीक है, कौनु शाय बेहैस यहसुलु या यल्ज़मु मिन इल्म ही अल इल्मु बिशैइन। ठीक है, इल्म की दो किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। कौन सा इल्म हासिल हो जाए, बोलो, कौन सा इल्म हासिल हो जाए, तसव्वुर वाला, तस्दीक वाला?
एक शय के इल्म से दूसरी शय का इल्म हासिल हो जाए, यही कहा है ना उसने, यह लाजिम आ जाए। सवाल यह है कि फर्स्ट टाइम जिस चीज़ का इल्म हासिल हुआ है, दूसरी का इल्म तो फ्री वाला हो गया ना, चलो वो रहने दे। जिस चीज़ का इल्म आपने हासिल किया है, ये जो आपने इल्म हासिल किया है, ये कौन सा इल्म था? तसव्वुर था इस शय का, या इस चीज़ की तस्दीक थी? तस्दीक थी। सवाल अगर वाज़ेह नहीं है, मैं रिपीट कर सकता हूँ। कौन शाय बहैस यल्ज़मु मिन इल्मिही, शाय की पोजीशन इस तरह हो कि जैसे ही आपने उसका इल्म हासिल किया तो उसके इल्म के हासिल होने से एक दूसरी चीज़ का इल्म आपको खुद ब खुद आ गया है। तो खुद ब खुद वाले का नाम मैंने फ्री रख दिया है। अच्छा, फ्री वाले पर आएंगे। पहले ये समझो कि जिसका आपने इल्म हासिल किया है, वो शायद वो जो एक ख़ास सिचुएशन पर मुश्तमिल एक शायद थी, आपने उसका जो इल्म हासिल किया है, ये कौन से वाला इल्म है? तसव्वुर वाला है या तस्दीक वाला? तसव्वुर वाला है, तसव्वुर है, तसव्वुर है, तस्दीक है, दोनों है। फतवा बदल गया है। इल्म के अंदर जब तरक्की आती है, फतवा बदल जाता है। हाँ खान, तुम कायम हो, पक्की बात है, दोनों। अच्छा ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अगर इल्म से मुराद इल्म तस्वरी है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि दलालत का रिश्ता फ़कत इल्म तस्वरी में होता है। आपने किसी चीज़ का इल्म तस्वरी हासिल किया तो ऑटोमेटिकली फ्री में आपको उससे एक दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाएगा। तो दलालत का रिश्ता फ़कत किसके दरमियान होगा? मुफरदात में। अगर कहते हो इल्म से मुराद तस्वुर, और अगर कहते हो कि इल्म से मुराद तस्दीक है, जैसे कि खान साहब का फतवा है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर दलालत का रिश्ता दो तस्दीकों के दरमियान में होता। तीसरा उलमा का फतवा क्या है? लेटेस्ट फतवा जाकब साहब का, कि भाई दोनों मुराद हैं, चाहे वो तस्वुर वाला है चाहे। फिर इसका मतलब ये होगा कि दलालत का रिश्ता मुफरदैन के दरमियान भी हो सकता है, और तस्दीक़ैन के दरमियान भी, दो तस्वुरात के दरमियान भी हो सकता है, दो तस्दीकों के दरमियान भी। यही मतलब निकलेगा, ये नतीजा है तुम्हारे फतवे का। अब तुम बताओ कि भाई नतीजा देखने के बाद अब पिछले फतावा जो हैं उनको जो है वो थोड़ा अपडेट नहीं करना चाहिए हैं? क्योंकि नतीजा जो है वो फौरन सामने आ गया है ना। तो अब नतीजे को सामने रख के कौन सा फतवा हमें जो है यहाँ मुनासिब लगता है? तस्वुर वाला, तस्दीक वाला, क्या कहते हैं आप? दोनों वाले दोनों होने चाहिए। हाँ भी, हाँ तस्दीक वाला। इसका मतलब है आप लोगों ने अपने फतावा तब्दील नहीं किया। ठीक हो गई बात? चलो, फतावा तब्दील करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक जो है एक दूसरे एंगल से जो है एक और हिंट देता हूँ आपको। दलालत में और दलील में क्या फ़र्क है? दलील अगर दो कज़ियों के दरमियान होती है क़यास में, और दलालत जो होती है ना वो मुफ़रदात में होती है। अच्छा, तुम्हारा फतवा तस्वुर वाला है? हाँ जी, इस सवाल पर गौर करो, हो सकता है आपको जो है वहाँ कुछ नतीजा करीब हो जाए मज़ीद। हाँ जरील अब्बास, दलालत में और दलील में क्या फ़र्क? जिस वक्त दलाल कर रहा है, जिस वक्त एक चीज़ दूसरी चीज़ मुंतबिक हो रहा है, हम उस वक्त दलाल कहेंगे। जब दलाल कर जाए उसका बाद मरहला दलील का है, दलाल जब हो जाए तो फिर हम उसे दलील कहेंगे। यानी अल दलील मौकूफ़ुन अलल दलालत या मुतअख्खिरुन अनिल दलालत। अच्छा, और किसी को समझ आ रही है इस बात की? नहीं आ रही? दलालत और दलील के दरमियान क्या फ़र्क है? आपकी तवज्जो आम है, दलील खास है। ये तो बहुत ही मंतकी फ़र्क निकाला तुमने। थोड़ा आसान सा फ़र्क बताओ ना, लोगों को समझ भी आ जाए।
تو عام خاص کے لیے پھر آپ کو اس کے مصداق ڈھونڈنا پڑیں گے، ایک کے مصداق زیادہ ہونے چاہیے، ایک کے تھوڑے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، واپس آؤ. احسن تم کیا فرق ہے قبلہ؟ بتانے لگا آگے جائیں. دلالت ایک شے کے علم تصوری سے دوسری شے کا علم تصوری فری میں حاصل ہو جائے، یہ ہے دلالت. تو علم کے ساتھ ہم نے لفظ تصوری کا اضافہ کر دیا اب، تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کہ دلالت کا رشتہ مفردین کے درمیان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلالت صرف مدلول کے تصور کا فائدہ دیتی ہے، تصور سے زیادہ مدلول کے بارے میں اور کچھ فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک کا جملہ ہے، بول دیا ہم نے. دلالت مدلول کے تصور سے زیادہ دیتی ہے، مزید فائدہ صرف مدلول کے. اگر کوئی دلالت سے مدلول کے تصور سے زیادہ مزید فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں ایک کیپیسٹی ہے، کوالٹی ہے، تو آئے سامنے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. کوئی نہیں ہے، سب متوجہ ہو گئے ہیں کہ دلالت صرف مدلول کے تصور کا فائدہ دیتی ہے. تو یہاں سے پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ دلالت صرف دو تصوروں کے درمیان ہوتی ہے. ایک چیز کا تصور آپ نے حاصل کیا تو پہلی چیز کا آپ تصور حاصل کریں گے، لیکن دوسری چیز کا تصور یا علم تصوری دلالت کے رشتے کی وجہ سے آٹومیٹکلی فری میں آپ کو مل جائے گا. تو دلالت کا رشتہ صرف دو تصوروں کے درمیان میں ہوتا ہے. جب ہم دھوئیں کو دیکھتے ہیں تو آگ پر یقین آ جاتا ہے، آگ کا تصور آتا ہے، تصور میں یقین آتا ہے، تصدیق کی بات ہو جاتی ہے. پھر دھوئیں کا وجود کہو گے. الدخان موجود دلیل. دھوئیں پر بھی ہمیں یقین ہے، دیکھتے ہیں یقین ہو جاتا ہے. یہ بات آسان پہنچ گیا. میں سمجھ گیا آپ کی بات، پہنچ گیا. توجہ فرمائیے جی، لیاقت صاحب نے کیا کہا ہے. ایک ہے دخان، ایک ہے وجود دخان. جب آپ وجود دخان کہو گے تو پھر اس وقت قضیہ بن جائے گا. الدخان موجود، اس کا موجود ہونا دلیل ہے کہ نیچے النارو موجود ہو نا. مجھے تصدیق حاصل ہو گئی ہے آپ کو، وہ بین القضیت ہے نا. دخان کے تصور سے نار کا تصور آئے گا. وجود کو ہٹا دو، یقین نہیں ہے، تصور ہے فقط. جب وجود ساتھ لگا دو گے تو پھر وہ تصور مفرد نہیں رہے گا، وہ قضیہ بن جائے گا. مولانا صاحب تو دونوں میں آ سکتے ہیں اسی طرح، ہیں، مفردات میں بھی ہوگی دلالت اور تصدیقات میں بھی دلالت ہوگی. جب آپ اس کو جو ہے وہ بناؤ گے تو اس وقت دلیل کا لفظ استعمال کریں گے، دلالت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، وہ تصدیق کا فائدہ دیتی ہے آپ کو. اس لیے وہ بین التصدیقین یا بین القضیتین ہوتی ہے. اور دلالت جو ہے وہ صرف مدلول کے تصور کا فائدہ دیتی ہے. اس لیے یہ کس کے درمیان ہوتی ہے؟ بین التصورین ہوتی ہے. تو ہم نے جو سوال اٹھایا ہے کہ دلالت میں اور دلیل میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ دلالت بین التصورین ہوتی ہے اور دلیل بین التصدیقین ہوتی ہے. فرق واضح ہو گیا؟ یہاں سے پھر ہم سمجھیں گے دلالت کیا شے ہے. ایک شے کے علم تصوری کو آپ نے حاصل کیا، محنت کر کے حاصل کیا ہے، کسی سے سن کے حاصل کیا ہے، ڈکشنری سے حاصل کیا ہے، کتاب سے حاصل کیا، کہیں سے ابھی آپ نے ایک شے کا علم حاصل کیا. تو جیسے ہی آپ نے اس کا علم حاصل کیا تو اس چیز کا کسی دوسری کے ساتھ رشتہ ہے دلالت کا. ٹھیک ہے، رشتہ ہے. تو فری میں آپ کو پھر دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے گا. تو ایک شے سے دوسری شے کا آپ کو فری میں علم حاصل ہو جائے، یہ دلالت ہے. تو اب اس کو میں اپنے معاشرے کی طرف پلٹانے لگا ہوں. معاشرے میں اس کے لیے بولتے ہیں نشانی. کیا بولتے ہیں؟ نشانی.
पुराने ज़माने में जो है वो छल्ला निशानी में दिया जाता था, अब तो दौर बदल गए हैं, मोबाइल दिए जाते हैं। निशानी समझ में आई आराम से? तो निशानी जो है जिसकी वो निशानी है, भाई कुरान के अंदर निशानी लिखा हुआ है। और आजकल जो है कुछ मौलवी साहबान जो हैं वो भी जो आयतुल्लाह बने हुए हैं, आयतुल्लाह का माना भी निशानी होता है, अगरचे जो है वो जिसकी निशानी है वो देख के ज़हन में ठीक है ना। और देखो चलो बात आ गई है, जरा सुन ले। अतर वो नहीं होती जिसको दलील देकर मनवाया जाए, ये अतर है भाई, ठीक है, दलील देके मनवाया जाए ये अतर है। तो जिसको दलील देकर मनवाया जाए वो अतर नहीं होती। अतर वो होती है जिसकी खुशबू से दुनिया खुद मान जाए, हाँ क्या अतर है। तो इज्तिहाद और आयतुल्लाह का जो है उसको राज समझ में आया आपको? तो वो दावे करके और दलीलों के साथ नहीं मनवाए जाते कि मैं आयतुल्लाह हो गया हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है। जब किसी के अंदर ये जौहर पैदा हो जाता है तो उसके किरदार से, उसके इखलाक से, उसकी इल्मी गुफ्तगू से ये खुशबू किरदार की खुशबू है, इखलाकियात की खुशबू है, सीरत की खुशबू है। जब वो बोलता है तो उसके अफकार की खुशबू है, ये बता देती है बंदे के अंदर जो है वो बल्लब रोशन हो गया है। तो अब इसको दलीलों के ज़रिए नहीं मनवाने की ज़रूरत होती कि भाई ये आयतुल्लाह बन गया है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धोखे में ना आना, ज़माना बड़ा तेज़ हो चुका है और हमारी काम जो है पहले भी बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है। तो ऐसे आयतुल्लाह यहाँ से पैक करके पाकिस्तान भेजने की ज़रूरत नहीं है कि जो खुशबू ना हो, डेकोरेशन हो। एक सवाल है वो ये है कि जब दखुल बाब हो जाता है तो हमें यकीन हो जाता है कि कोई बाहर है, तो ये भी तो यकीन है, तस्दीक है। तो यही तुम्हारी बात के अंदर थोड़ा सा जो है अदम इल्तिफात मौजूद है। दुखान वाली मिसाल में जो है वो जुमला है अल दुखान मौजूद है, तो वजूद दुखान और दुखान ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप उसके महमूल को जो है वो सर्फ नज़र कर जाते हो और समझते हो कि ये मुफरद है। ऐसा नहीं है, वो मुफरद नहीं होता, वहाँ जुमला होता है। जब जुमला होता है तो यकीन, क्योंकि यकीन का फ़ायदा सिर्फ तस्दीक देती है, दलालत सिर्फ मदलूल के तसव्वुर का फ़ायदा देती है। अगर आपको वहाँ यकीन का फ़ायदा हासिल हो रहा है तो फिर समझ लो बैकग्राउंड में जिसके ज़रिए मैंने ये फ़ायदा हासिल किया है वो मुफरद नहीं है, वो जुमला है। हम अपनी जो है वो अदम इल्तिफात की वजह से उसको मुफरद समझ रहे हैं। तो ये कानून तय हो गया भाई, अब कानून तय हो गया है कि दलालत बैन तस्दीकान होती है, तसव्वुर और सॉरी दलालत बैन तसव्वुरान होती है और दलील बैन अल तस्दीकान होती है। तो हम क्या समझा रहे थे कि दलालत होती क्या चीज़ है। दलालत भाई साहब निशानी है, एक चीज़ निशानी है जिससे आपको एक दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाता है। आपने मुल्तफित निशानी की तरफ होना है, ठीक है, इसकी तरफ आप मुल्तफित हुए, इसका तस्वुर आपके जहन में आया। जैसे ही आपके जहन में इसका तस्वुर आया, इसके तस्वुर से, इल्म तस्वुरी से जिसकी ये निशानी है उसका तस्वुर ऑटोमेटिक खुद ब खुद या फ्री में जो लफ्ज़ मुनासिब लगे उसका इल्म आपको इल्म तस्वुरी हासिल हो जाता है। ठीक हो गई बात। तो आज हमने सिर्फ एक नुक्ता पढ़ा है कि दलालत कहते किसे हैं। आगे मुसन्निफ ने दलालत की अक़साम बयान की हैं, वो सारी की सारी अक़साम निशानियाँ हैं। जैसे हम किस में बयान करेंगे तो निशानी का लफ्ज़ ज़हन में रखना, इंशाल्लाह जो है आपको सारा मतलब समझ में आ जाएगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, टाइम थोड़ा रह गया। हाँ जी, कौन शय से क्या मुराद, शय इस तरह हो कि उसके इल्म से दूसरी चीज़ के हासिल। हाँ जी, शय इस तरह हो, इससे क्या मुराद, निशानी हो, इस तरह का मतलब यह है कि शायद उसकी निशानी हो, इस हाल में है, वो हालत वही उसकी निशानी होना है। शायद हो मगर यह कि उसके अंदर निशानी होने की क्वालिटी ना हो, तो होने से काम नहीं चलेगा, निशानी होना चाहिए। ठीक है ना। वैसे देहात में लाने वाले लोग जो है वो बाज़ दफ़ा रास्ते से जो है वो शाम की लकीर देख के जो है वो उनको पता चल जाता है, वो निशानी है उसकी जो छोड़ के गया है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है?
अभी निशानियों की मिसालें आ रही हैं। वला मुरसालुन कौलहु, मुसन्निफ का कौल, दलालतुल लफ्ज़, लफ्ज़ का दलालत करना। तो अब देखो ना, लफ्ज़ की बहस नहीं है, लफ्ज़ की दलालत की बहस है। लफ्ज़ और चीज़ है, लफ्ज़ की दलालत और चीज़ है। अच्छा, लफ्ज़ का दलालत करना, तो दलालत की क्या तारीफ है? कहता है ये बाद में बताएंगे। कद अलिमता, आप जान चुके हैं, अन्ना नज़र अल मंतकी बिल ज़ात इन्नमा हुआ फिल मुअर्रिफ़ वल हुज्जत, मंतकी की गौर व फिक्र का नुक्ता मरकज़ या महवर क्या है? वो है मुअर्रिफ़ और हुज्जत। यानी मंतकी जब बहस करता है तो उसकी बहस का मौजू, ठीक है, वो मुअर्रिफ़ और हुज्जत है। वह हुमा मिन कबील मानी, मुअर्रिफ़ और हुज्जत अल्फाज नहीं है, मानी है। अच्छा, इल्ला अन्नहु, मगर ये कि कमा तारफा, मारूफ है जी। क्या करते हैं उलमा? ज़िक्रुल हद्द वल गायत वल मौज़ूए फी सदर कुतुबिल मंतिक, मंतिक की कुतुब की इब्तिदा में, सदर यानी इब्तिदा में, कुतुब की इब्तिदा में वो तारीफ बयान करते हैं, गायत बयान करते हैं, मौजू बयान करते हैं, मुकदमा बयान करते हैं। क्यों? ले युफीद बसीरतन फिल शुरू है, ताकि इस तालिब इल्म को किताब शुरू करने में कुछ बसीरत हासिल हो जाए, उसे पता चले कि भाई मैं गाड़ी पे जो बैठा हूँ तो पता तो होना चाहिए कि ये गाड़ी किस शहर की तरफ जा रही है। उसको पता तो हो कि ये इल्म मैं पढ़ रहा हूँ तो ये इल्म है क्या चीज़, इसका फ़ायदा क्या है। तो इब्तदाई बसीरत की चीज़ें बयान की जाती हैं। कज़ालिक, इसी तरह, तारफ़ा, मारूफ है। क्या मारूफ है? इरादो मबाहिसिल अल्फाज, अल्फाज की बहस को वो वारद करते हैं, जिक्र करते हैं, बादल मुकदमते, मुकदमे को बयान करने के बाद। तो क्या तासर मिला? दलालत की बहस लफ्ज़ की बहस है। ले युईना अलल इफादते वल इस्तिफादते, ताकि ये अल्फाज की बहस का वारद करना जो है ये मददगार साबित हो जाए इफादे और इस्तिफादे के लिए। आपको किताब ने इफादा देना है, आपने इस्तिफादा करना है, मगर ये इफादा और इस्तिफादा ये हासिल होगा किससे? अल्फाज से, बकौल शाहे के। बेअन युबय्यन मानी, अच्छा अब बेबयानिया है, किसको बयान कर रही है? इफादे और इस्तिफादे को, कि आप अल्फाज से इफादा इस्तिफादा कैसे हासिल करते हो। बेअन युबय्यन मानी अल अल्फाज अल मुस्तलहात अल मुस्तअमलत फी मुहावरात अहले हाज़ल इल्म मिन अल मुफरद वल मुरक्कब वल कुल्ली वल जुज़ई वल मुतवाती वल मुशक्किक वगैरह। वो कहता है भाई साहब, आपको हम दलालत की बहस समझाएंगे तो आपको वो जो हमारे इस्तिलाही अल्फाज हैं, इल्म के अंदर इस्तिलाही कुछ अल्फाज हैं जिन पर उलमाए मंतिक ने या हर अहले इल्म ने अपने अपने इल्म के मुताबिक इस्तिलाह कायम की हुई है। तो जो इस्तिलाही अल्फाज हैं उनके मानी को आप तब समझेंगे जब पहले आपको अल्फाज की दलालत की अक़साम और दलालत की समझ होगी। तो आने वाली बहसों में हम लफ्ज़ बोलेंगे मुतवाती, मुशक्किक, मुफरद, मुरक्कब, तो उन अल्फाज के कुछ मानी हैं, वो लफ्ज़ बोल के हम वो मानी आपको समझाना चाहते हैं, मगर वो मानी आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आपको अल्फाज की दलालत के बारे में समझ नहीं होगी। तो वो अल्फाज अपने मानी को समझाएंगे दलालत के ज़रिए, तो पहले हम चाहते हैं कि आपको फिर दलालत समझा दें। तो दलालत की बहस हमने इसलिए बयान की है ताकि आप इफादा और इस्तिफादा हासिल कर सकें। फलबहस अनिल अल्फाज मिन हैसुल इफादते वल इस्तिफादते, तो अब अल्फाज के बारे में जो बहस है वो उसके इराब और बिना के बारे में नहीं, बल्कि उनकी इफादे और इस्तिफादे वाली हैसियत के बारे में है। ठीक है, अल्फाज के बारे में जो बहस है वो किस हैसियत से बहस है, उनकी किस जिहत के मुतल्लिक है ये बहस? इफादे और इस्तिफादे वाली जिहत से बहस है। और इफादे और इस्तिफादे वाली जिहत क्या है? वहुमा इन्नमा यकूनान फिल अल्फाज बिल दलालत, और अल्फाज के अंदर ये जो इफादे और इस्तिफादे वाली जिहत है ये मरबूत है किसके साथ? बिल दलालत, दलालत के साथ। फलिज़ा बदा बिज़िक्र दलालत, मुसन्निफ ने इब्तिदा की है अपनी बहस की दलालत के जिक्र के साथ। ठीक है जी। इफादा और इस्तिफादा क्या होता है?
جو متکلم ہے وہ فائدہ دے رہا ہے، جو سامع ہے وہ گفتگو سے فائدہ لے رہا ہے۔ فائدہ دینا یہ افادہ ہے، اور فائدہ حاصل کرنا استفادہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو ہم دلالت کے ساتھ جو بحث کر رہے ہیں وہ اس افادے اور استفادے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ متوجہ ہو گئے نا؟ مصنف آخر میں آ کے ٹوٹل کرے گا کہ بھئی قسمیں تو ہیں 6، لیکن ان میں سے ہم نے جو ہے ایک قسم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ۔ ٹھیک ہے بھئی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دلالت سے بحث کر رہے ہیں افادے اور استفادے کی وجہ سے، اور دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے اس کے اندر مکمل افادہ اور استفادہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اقسام ہیں ان کے اندر مکمل افادہ اور استفادہ موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ذرا سن لو۔ کچھ معانی ہوتے ہیں کلیات، کچھ معانی ہوتے ہیں محسوسات۔ ٹھیک ہے، محسوسات کو آپ دلالت وضعیہ کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہو، اس کے علاوہ جو باقی قسمیں ہیں ان کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، جو محسوسات ہیں۔ لیکن جو معانی کلیہ ہیں وہاں اشارہ کام نہیں دیتا، وہاں باقی اقسام دلالت کے کام۔ ان معانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی وسیلہ استعمال کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ۔ تو ہم جو معنی سمجھا رہے ہیں یہ معنی کلیہ ہیں، اور یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے سوا کسی اور قسم کے ساتھ ان کا افادہ استفادہ حاصل، اس لیے پھر ان 6 قسموں میں سے ہم کس کو چن لیں گے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، مصنف نے جو ہے وہ دلالت کی پہلے تعریف بیان کیا ہے، تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اس نے دلالت کی اقسام بیان کی ہے۔ تو پہلے دلالت کی ذرا تعریف ہو جائے۔ واہیا کون؟ دلالت اللفظ، جو دلالت ہے، کون الشیء بحیث، کوئی چیز اس حیثیت میں، اس پوزیشن میں ہو کہ یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، آپ نے اس چیز کا علم حاصل کیا، جیسے ہی اس چیز کا علم حاصل کیا تو وہ ایک خاص سچویشن میں تھی، اس کے علم سے خود بخود حاصل ہو گیا العلم بشیء آخر، کسی دوسری چیز کا علم۔ وہ جو کوئی دوسری چیز ہے بھائی صاحب وہ اس کے ساتھ مربوط تھی، اس کا اس کے ساتھ رشتہ تھا۔ اچھا، الاول هو الدال والثانی هو المدلول۔ اچھا، تو دال اور مدلول کے درمیانی رشتے کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ والدال و ان کان لفظا، اب یہ میں قسمیں جو گنوا رہا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ ترجمے سے کام چل جائے گا، تشریح کی احتیاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان؟ والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ والا فغیر لفظیۃ، اگر دال ہے لفظ تو اس کو کہتے ہیں دلالت لفظیہ، اگر دال ہے غیر لفظ تو دلالت غیر لفظیہ۔ وکل منہما، لفظیہ اور غیر لفظیہ ان دونوں میں سے ہر ایک ان کانا، اب ان کانا کے ذریعے ان دونوں کی تقسیم دیتا ہے، 3 قسمیں بیان کرے گا دونوں کی، ٹوٹل قسمیں ہو جائیں گی 6۔ 3 قسمیں دلالت لفظیہ کی، 3 غیر لفظیہ کی۔ ان کانا بے سبب وضع الواضح، اچھا بھی لفظ نے معنی پہ دلالت کیا ہے، اور وجہ کیا ہے دلالت کی؟ اب دلالت کا سبب ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، لفظ اور معنی کے درمیان دلالت کا رشتہ موجود ہے، لیکن یہ رشتہ جو ہے کیسے پیدا ہوا ہے، یعنی یہ دلالت کیسے وجود میں آئی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دلالت کی، نہ لفظ کی نہ معنی کی۔ لفظ اور معنی کے درمیان جو دلالت ہے یہ کس سبب سے وجود میں آئی ہے؟ تو اس کے وجود میں آنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے واضع الواضح و تعینہ الاول بازاء الثانی، واضح نے اول کو ثانی کے لیے معین کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے۔ واضح نے ایک کو دوسرے کے لیے وضع کر دیا ہے،
اور وضع کا معنی ہی تعین و شائن لشائن، ایک شے کو دوسری کے لیے معین کر دو، اسی کو وضع کہتے ہیں۔ تو وضع کے بعد آگے جو لفظ تعین لے کر آیا ہے وہ اس وضع کو، اگر کوئی لفظ وضع سے جو ہے بات سمجھ نہیں رہا تو اس نے پھر تعبیر بدل دیا ہے، ابھی وضع سے مراد کیا ہے؟ تعین ہے۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ دلالت وضعیہ۔ اب اگر لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو دلالت لفظیہ وضعیہ، اگر غیر ہے لفظ کا تو دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کا دلالت لفظ زید علی ذات